Okay, I hope the screen is visible to all of you. And we were discussing various page replacement algorithms in our last lecture. So first of all, we talked about FIFO page replacement algorithm, which is first in, first out. And here we see that there are two major problems. The page fault is very high and it suffers from Bilady's anomaly where sometimes if we have more number of frames, page fault rate also increases. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. So we have discussed how to create the page fault, how to consider reference string, how to replace the new page. So FIFO says whenever a page must be chosen for replacement, the oldest page must be chosen. So सबसे पुराने पेज को हम यहाँ रिप्लेस करते हैं. क्यू की हेल्प से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बिलेडीज एनोमली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो फीफो पेज रिप्लेसमेंट में हमें मिलती है. सो वी हैव डिस्कस्ड दिस सिनेरियो आल्सो इन द लास्ट लेक्चर. After that, we talked about optimal. So optimal is one of the best page replacement algorithm because it always gives least page fault. And here the strategy is to replace the page that will not be used for the longest period of time. So here we go from left to right. We talk about future. So we see out of those pages which are currently in the frame, ऐसा कौन सा पेज है जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम तक यूज नहीं होगा. तो उस पेज को हम रिप्लेस करते हैं. इन द केस ऑफ ऑप्टिमल एल्गोरिथम इट नेवर सफर्स फ्रॉम बिलेडीज एनोमली, बट द ओनली प्रॉब्लम इज here we requires the future knowledge of the reference string. CPU कौन से पेज को कॉल करने वाला है ये हमें पहले से पता होना चाहिए, which is almost impossible. So practically optimal को implement करना feasible नहीं होता. And this is the case where we will having 9 page faults only if we take the same string and 3 frames. And in the end we talked about another page replacement algorithm that is least recently used. So instead of future, here we talked about past. So यहाँ पर हमें कौन सा पेज रिप्लेस करना है जो पास्ट में सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक यूज नहीं हुआ हो या फिर जो लीस्ट रिसेंटली यूज हो. रिसेंटली यूज वो होगा जो बिल्कुल रिसेंटली यूज हुआ होगा पेज, लेकिन लीस्ट साथ में लग गया तो सबसे पुराना पेज. राइट टू लेफ्ट हम इसमें जाएंगे. सो राइट टू लेफ्ट के अकॉर्डिंग जो हमें सबसे बाद में पेज मिलेगा, दैट पेज विल बी रिप्लेस्ड. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड दैट फीफो के केस में पेज फॉल्ट बहुत ज़्यादा है, बिलेडीज एनोमली की प्रॉब्लम आ सकती है. ऑप्टिमल के केस में हमारे पास फ्यूचर नॉलेज होनी चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो LRU इज़ the feasible algorithm and it is implemented in most of the modern operating system. And then we have seen that LRU को हम implement कर सकते हैं either using counter, and with this concept एक clock associate कर देते हैं हम हर पेज के साथ जो हमें उस particular पेज का टाइम बताएगा जब वो रेफर हुआ था. So according to that हमें पता चल जाएगा कि सबसे oldest पेज कौन सा है या फिर सबसे least recently पेज used पेज कौन सा है. Second important thing which I have discussed was stack implementation. So with the help of stack, we can also track the records of all those pages which are recently used or which are least recently used. So यहाँ पर क्या concept है? Whatever page is going to be referenced, we simply put that page onto the top of the stack. So यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें इस reference string की, तो सबसे पहले 4 रेफर हुआ. सो 4 हमारा टॉप ऑफ स्टैक पे आ गया. आफ्टर दैट 7 रेफर हुआ तो 7 हमारा टॉप ऑफ स्टैक पे आ गया. फिर 0 रेफर हुआ तो 0 हमारा टॉप ऑफ स्टैक पे आ गया. फिर 7 रेफर हुआ तो 7 हमारा ऑलरेडी फिर से टॉप ऑफ स्टैक पे आ जाएगा. सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर वी विल बी एबल टू हैव द रिसेंटली यूज्ड पेजेस एट द टॉप ऑफ द स्टैक. एंड जो सबसे बॉटम ऑफ द स्टैक में होंगे वो डेफिनेटली हमारे कौन से पेजेस होंगे जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होंगे. सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर हेयर इन दिस सिनेरियो वी कैन यूज this page number 4 for page replacement if we are using the LRU concept. So today we have to talk about some other algorithms which are used for page replacement. So basically LRU के साथ problem क्या है? LRU ऑप्टिमल और फीफो से बेस्ट है बिकॉज फीफो में पेज फॉल्ट ज़्यादा है. ऑप्टिमल को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट
फॉर LRU अगर मैं बात करूं, सो फ्यू कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड्स द सफिशिएंट हार्डवेयर सपोर्ट फॉर LRU। सो LRU के लिए बहुत ही कम कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कंप्लीट हार्डवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही कम सिस्टम्स एक्चुअली LRU का हार्डवेयर सपोर्ट करते हैं, और उसमें से एक हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज रेफरेंस बिट। तो रेफरेंस बिट क्या है? विद ईच पेज वी एसोसिएट अ बिट, जिस बिट को हम रेफरेंस बिट बोलते हैं। और इनिशियली द ऑपरेटिंग सिस्टम सेट all these reference bit for each page to 0। so 0 means initially वो पेज अभी तक रेफर नहीं हुआ है, एंड जब भी वो पेज रेफर होगा, वेन एवर दैट पेज इज रेफरेंस्ड, तो हम उस पेज के साथ जो रेफरेंस बिट होगी उसको 0 से 1 सेट कर देंगे। सो बेसिकली पर्पस क्या है इस रेफरेंस बिट का? इस रेफरेंस बिट की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से पेजेस हमारे रेफर हो चुके हैं, और जो पेजेस की रेफरेंस बिट की वैल्यू 0 सेट होगी, दैट मीन्स वो एक भी बार हमारे अभी यूज नहीं हुए हैं। सो दैट मीन्स वो वाले पेजेस होंगे जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेजेस होंगे। तो बेसिकली में LRU अप्रोक्सीमेशन की यहाँ बात कर रहे हैं, तो LRU के साथ अगर हम रेफरेंस बिट का कंसेप्ट जोड़ दें, इनिशियली सारे पेजेस के लिए रेफरेंस बिट की वैल्यू 0 रहेगी। जो जो पेज रेफर होता जाएगा, मेन मेमोरी में आता जाएगा, उसकी रेफरेंस बिट को हम 0 से 1 कर देंगे। कुछ टाइम बाद अगर हम चेक करना चाहें कि सपोज मेरे पास 8 पेजेस थे 0 to 7, तो सपोज फर्स्ट 4 पेजेस 0 to 3 की वैल्यू 1 है और लास्ट 4 पेजेस की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स जो हमारे लास्ट 4 पेजेस हैं वो अभी तक रेफर नहीं हुए हैं, उनको CPU ने इन्वोक नहीं किया है। तो वो 4 पेजेस हमारे क्या है? बेसिकली लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेजेस हैं, और जिनकी रेफरेंस बिट की वैल्यू 1 सेट हो चुकी है वो पेज रेफर हो चुके हैं, तो वो लीस्ट रिसेंटली यूज नहीं है, वो रिसेंटली यूज पेजेस हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस बिट। लेकिन इस कंसेप्ट में भी क्या प्रॉब्लम है? हमें ये तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से पेजेस रेफर हो चुके हैं, बिकॉज उनके लिए रेफरेंस बिट की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। जो पेज रेफर नहीं हुए होंगे उनके लिए रेफरेंस बिट की वैल्यू 0 रहेगी। लेकिन किस ऑर्डर में वो वाले पेजेस हमारे रेफर हुए थे, बिकॉज सिर्फ हमारी बिट 0 से 1 हो जाएगी, हमें ऑर्डर नहीं पता चलेगा। सो इस रेफरेंस बिट वाले कंसेप्ट के साथ हमारे पास ये इशू रहेगा कि डेफिनेटली हम ये आइडिया तो लगा सकते हैं कि कौन कौन से पेज रेफर हो चुके हैं, यानी कि कौन कौन से पेजेस रिसेंटली यूज पेजेस हैं, और जिनके लिए रेफरेंस बिट की वैल्यू 0 है वो वाले कौन से पेजेस होंगे जो लीस्ट रिसेंटली यूज होंगे, जो रिसेंटली यूज नहीं हुए। लेकिन जब भी जिन पेजेस के लिए रेफरेंस बिट की वैल्यू 1 सेट हुई, तो उस केस में हम नहीं बता सकते कि ऑर्डर क्या रहेगा, कौन से ऑर्डर में उनकी वैल्यूज 1 सेट हुई थी। सो टू एलिमिनेट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, वी हैव अनदर एल्गोरिथम which will use this concept of reference bit, and that particular algorithm is known as second chance algorithm। so basically second chance algorithm क्या है? फीफो का कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे ऑर्डर के लिए, और रेफरेंस बिट वाला हार्डवेयर सपोर्ट हम इसमें देंगे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड के कंसेप्ट के लिए। सो सेकेंड चांस एल्गोरिदम को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? क्लॉक एल्गोरिदम भी बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या होगा? जिस पेज को हमें रिप्लेस करना है, तो अगर उस पेज की रेफरेंस बिट हमारी 0 है, तो अगर रेफरेंस बिट 0 है दैट मीन्स वो पेज अभी तक रेफर नहीं हुआ है। वो कौन सा पेज है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज ही है। देन उस केस में डेफिनेटली हम विदाउट एनी हेजिटेशन वी विल रिप्लेस दैट पर्टिकुलर पेज। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर पेज की जिसको हमें रिप्लेस करना है, अगर उसकी रेफरेंस बिट 1 है, तो रेफरेंस बिट 1 का मतलब वो पेज कहीं ना कहीं रिसेंटली रेफरेंस्ड हुआ था, रिसेंटली यूज हुआ था। तो उस पेज को हम क्या करेंगे? एक सेकेंड चांस देंगे कि हम अभी तुझे रिप्लेस नहीं करते, बिकॉज टू लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वाला पेज नहीं है, तो रिसेंटली यूज्ड वाला पेज है। सो अगर किसी भी पेज की रेफरेंस बिट 0 होती है, 0 का मतलब वो रेफरेंस नहीं हुआ है, वो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ही है, तो वो डेफिनेटली रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पेज की रेफरेंस बिट की वैल्यू 1 है, तो उस पेज को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, उस पेज को हम सेकंड चांस देंगे। सेकंड चांस किस चीज़ का देंगे? कि अभी हम तेरे को रिप्लेस नहीं करते, हम नेक्स्ट पेज को चेक करते हैं कि उसकी रेफरेंस बिट 0 है या 1 है। तो अगर उसकी भी 1 होगी तो हम उसको भी रिप्लेस नहीं करेंगे नेक्स्ट पेज को, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो हम सर्कुलर क्यू की हेल्प से
इस सेकंड चांस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो भी देखो इसमें क्या करना है, अगर रेफरेंस बिट 0 मिल जाएगी तो हम रिप्लेस कर देंगे उस पेज को, लेकिन अगर उस पेज की रेफरेंस बिट 1 सेट होगी उस केस में हम उस पेज को सेकंड चांस देंगे और साथ साथ हम क्या करेंगे, उसकी रेफरेंस बिट को 0 सेट कर देंगे। उस पेज को हम मेन मेमोरी में ही रहने देंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, और हम नेक्स्ट पेज को चेक करेंगे कि उसकी रेफरेंस बिट 0 है या 1 है। तो अगर उसकी 0 होगी तो उसे रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट पेज को, अगर उस नेक्स्ट पेज की भी रेफरेंस बिट 1 है तब हम उस पेज को भी सेकंड चांस देंगे और फिर हम नेक्स्ट पेज की रेफरेंस बिट को चेक करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड चांस एल्गोरिदम का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमें गिवन है जिसे हम क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम भी बोलते हैं। सो लेफ्ट साइड में आप देखो यहाँ पर क्या गिवन है, this is one of the way to implement this algorithm. Here we use the concept of circular queue, और यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल हम यूज करेंगे जो क्या इंडिकेट करेगा, उस पेज को इंडिकेट करेगा जो हमें नेक्स्ट रिप्लेस करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज द नेक्स्ट विक्टिम, दैट मीन्स दिस इज द नेक्स्ट पेज टू रिप्लेस। लेकिन इस पेज के लिए जो रेफरेंस बिट क्या है वो 1 है। सो डेफिनेटली इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अगर हमारे किसी पेज की रेफरेंस बिट 1 सेट है उस पेज को हमने सेकंड चांस देना है, मतलब कि हम इस पेज को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। लेकिन जाते जाते हम क्या कर जाएंगे, इस बिट की वैल्यू 1 से 0 कर जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी ये 0 हो चुकी है। जब हम नेक्स्ट पेज पे आए तो फिर से नेक्स्ट पेज के लिए भी जो हमारी रेफरेंस बिट थी वो 1 थी। सो वी विल अगेन गिव दिस पेज अ सेकंड चांस, वी विल नॉट रिप्लेस दिस पर्टिकुलर पेज बट वी विल सेट दिस रेफरेंस बिट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज टू 0 ऑल्सो। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बिट की बात करें तो भाई यहाँ पर 0 मिल गया, दैट मीन्स ये हमारा कौन सा पेज है, लीस्ट रिसेंटली यूज वाला पेज है। तो इस पेज को हम डेफिनेटली रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड के कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस बिट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 0 का मतलब वो पेज रेफर नहीं हुआ, तो वो डेफिनेटली कौन सा पेज है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज है, यानी कि सबसे कम रेफर हुआ है या सबसे कम रिसेंटली यूज्ड हुआ है। लेकिन अगर किसी भी पेज की रेफरेंस बिट 1 सेट हो जाती है तो वो डेफिनेटली रेफर हुआ था, तो वो हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज पेज नहीं होगा। उस केस में हम उस पेज को एक सेकंड चांस देंगे, उसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, एक सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करके हम नेक्स्ट पेज को चेक करेंगे। अगर नेक्स्ट पेज की भी रेफरेंस बिट 1 है तब हम फिर से नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, लेकिन अगर नेक्स्ट पेज की रेफरेंस बिट 0 है देन वी विल रिप्लेस दैट पर्टिकुलर पेज विद द न्यू पेज। सो दिस इज द ओवरऑल concept of LRU approximation algorithm. So in LRU approximation algorithm, first we must learn the concept of reference bit, and reference bit की हेल्प से हमें ये तो पता लगा लिया कि कौन कौन से पेजेस रेफर हुए थे, लेकिन हमें ऑर्डर नहीं पता चलता। तो ऑर्डर को पता लगाने के लिए हमने फीफो का यूज़ किया। तो भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा पेज सबसे पहले आया था, और रेफरेंस बिट हमें ये बता देगी कि वो पेज की रेफरेंस बिट की वैल्यू 0 है या 1 है। 0 है तो वो रेफर नहीं हुआ, तो वो लीस्ट रिसेंटली यूज की कैटेगरी में है, उसी को हमने रिप्लेस करना है। अगर रेफरेंस बिट की वैल्यू 1 है तो वो रिसेंटली कहीं ना कहीं यूज हुआ है और उसे हमें रिप्लेस नहीं करना, उस पर्टिकुलर पेज को हमें सेकेंड चांस देना है। सो दिस इज all about LRU approximation algorithm as well as the second chance algorithm, and second chance algorithm is also known as clock replacement algorithm. Moving further, there are two more algorithms for page replacement which are commonly known as counting based page replacement. So यहाँ पर हम counting करेंगे pages की। तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग सिनेरियो हैं। फर्स्ट इज LFU. LFU stands for least frequently used. तो भाई ये क्या कहता है कि उस वाले पेज को रिप्लेस करो जो अभी तक सबसे कम बार रेफर हुआ है, सबसे कम बार यूज हुआ है। Similarly, we have one more algorithm that is MFU. MFU stands for most frequently used. Most frequently used algorithm क्या बोलती है, उस पर्टिकुलर पेज को रिप्लेस करो जो सबसे ज्यादा बार रेफर हुआ है। तो यहाँ पर हम काउंटिंग के बेसिस पर पेज, कौन से पेज को रिप्लेस करना है उसको हम चूज कर रहे हैं। LFU के साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग ऐसी होती है कि जो इनिशियली एक स्पेसिफिक पेज हमारा बहुत बार यूज होता है लेकिन बाद में जाकर वो कभी भी यूज नहीं होता। तो उस केस में देखो बेसिकली क्या होगा, स्टार्टिंग में वो बहुत बार यूज हो गया तो वो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज में नहीं आएगा,
लेकिन बाद में वो बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स काउंट वो हमेशा एंड तक हमारा मेन मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता रहेगा. सो दैट कैन बी द डिसएडवांटेज ऑफ LFU एल्गोरिदम. सिमिलरली MFU के अपने इश्यूज हैं. सो नाइदर LFU nor MFU is commonly used for the purpose of page replacement algorithm. Basically LRU ही हम यूज करते हैं या फिर LRU approximation के concept को हम यूज करते हैं if we want to replace any page in the concept of page replacement algorithm. But you must know about these algorithms also. So these are based on the concept of counting. So counting में हमारे पास least frequently used pages and most frequently used pages. least frequently जो सबसे कम बार रेफर हुआ है उस पेज को रिप्लेस कर दो. MFU से most frequently used जो सबसे ज़्यादा बार पेजेस रेफर हो चुके हैं, हर पेज का हम काउंट यहाँ पे स्टोर कराएंगे, कौन सा पेज कितनी बार रेफर हुआ है उसके बेसिस पर we will replace that particular page. So this is all about the various page replacement algorithms where we learned first of all first in first out, then optimal page replacement, then least recently used page replacement. Then today I talked about LRU approximation. In LRU approximation basically we have to study second chance algorithm, which is also known as clock algorithm. And lastly I talked about two more counting based page replacement algorithm. Very first is least frequently used and second one is most frequently used, but ये दोनों ही हमारी यूज नहीं होती in actual scenario in modern computer systems. Okay, moving further to a very interesting concept. तो भाई पेज तो हमने रिप्लेस कर दिया, हमें पता लग गया कौन से पेज को रिप्लेस करना है. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हमें ये बता देगी, बट allocation of frames is another important scenario in the case of memory management concept. So we are having a very limited size RAM, very limited size main memory space in our computer system. How to divide or how to allocate that fixed amount of free memory among various processes. So this is what allocation of frames is all about. So if I am having suppose 50 free frames in my main memory and I am having 2 processes or suppose 3 processes, so कौन से process को हम कितने frames allocate करेंगे, so that is also a big scenario. So here you can see basically there are 2 major allocation schemes by which we allocate the frames. So the very first is known as fixed allocation, or it is also known as equal allocation, and second is known as priority allocation. So what exactly happens in the case of equal allocation? So equal allocation क्या बोलती है भाई, जितने number of frames हैं, अगर मेरे पास m frames हैं and n processes हैं तो simply सारे processes को equal frames divide कर दो, यानी कि m divided by n frames हम allocate कर देंगे. So for an example, if there are 100 frames and these are the frames which are other than which are allocated by OS. So 100 frames हमारे पास user processes के लिए reserved हैं, and if we have 5 different processes, so what equal allocation says, just divide total number of frames by total number of processes, 100 divided by 5, and सारे के सारे processes को equal frames यानी कि 20 frames की space reserve कर दो. और अगर इन केस कुछ बच जाते हैं, सपोज यहाँ पर अगर 102 फ्रेम्स होते तो हमारे पास 2 फ्रेम्स एक्स्ट्रा बच जाते, तो उन फ्रेम्स को हम फ्री फ्रेम बफर पूल में रख देंगे जो कभी भी और किसी टास्क के लिए यूटिलाइज हो जाएंगे. सो दिस इज व्हाट इक्वल एलोकेशन सेज. एंड देयर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ एलोकेशन, दैट इज प्रोपोर्शनल एलोकेशन. तो भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है कि मेरा कोई एक प्रोसेस बहुत ही कम साइज का हो और कोई एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा साइज का हो. तो हो सकता है कि जो बहुत छोटा प्रोसेस था उसे 20 फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट ही ना हो, उसका काम 10 फ्रेम से ही चल जाए. तो उस केस में उस प्रोसेस के लिए जो हमारे रेस्ट ऑफ द 10 फ्रेम्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे. तो इक्वल एलोकेशन इस केस में एक ड्रॉबैक है कि अगर हमारे प्रोसेस का साइज वेरी करता है तो हमारे पास मेमोरी वेस्टेज होने के बहुत चांसेस रहते हैं. बट प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या कहती है? हर प्रोसेस को उसके साइज के अकॉर्डिंग हम फ्रेम्स एलोकेट करें, तो ये सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी रहेगी. अगर मेरा कोई साइज ऑफ द प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, उस प्रोसेस को हम ज़्यादा फ्रेम्स एलोकेट करें. अगर मेरा प्रोसेस बहुत छोटे साइज का है तो उसे हम कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेट करें. सो दिस इज व्हाट
this scenario says, and here you can see यहाँ पर हमें गिवन है SI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज ऑफ द प्रोसेस PI। तो सपोज किसी हर प्रोसेस का जो साइज है वो SI से डिनोट हो रहा है। सपोज दो प्रोसेस है P1 P2, सो S1 एंड S2 आर द साइज ऑफ द प्रोसेसेस एंड कैपिटल S रिप्रेजेंट्स द टोटल साइज ऑफ ऑल द प्रोसेसेस एंड M रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो यहाँ पर हम एलोकेशन कैसे करेंगे फॉर प्रोसेस PI, द फॉर्मूला विल बी द साइज ऑफ द प्रोसेस डिवाइडेड बाय टोटल साइज इनटू नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भाई मेरे पास दो अलग अलग प्रोसेसेस थे, दो ही प्रोसेस हैं और उन दोनों प्रोसेस का साइज एक का 10 KB है और एक का 127 KB है। एंड लेट अस सपोज जो हमारे फ्रेम्स हैं वो 1 KB के हैं, तो S1 को 10 फ्रेम्स चाहिए होंगे बेसिकली और S2 को 127 फ्रेम्स चाहिए होंगे। एंड मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं 64। सो इफ M इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स 64, तो अगर हम यहाँ पर इक्वल एलोकेशन करते तो भाई इक्वल एलोकेशन में हम 32 फ्रेम्स एलोकेट कर देते, लेकिन प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या कहती है, साइज ऑफ द प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम फ्रेम्स को एलोकेट करें, सो दैट वुड बी बेटर अप्रोच। उस केस में हमारे पास मेमोरी वेस्टेज बहुत कम होगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारे पास 64 है, size of process 1 is 10 KB and size of process 2 is 127 KB and I am assuming that frame size जो हमारा है वो 1 KB का है, तो that means process 1 को 10 frames की requirement होगी और process 2 को 127 frames की requirement होगी। So allocation यहाँ पे कैसे होगी, process 1 के लिए जो allocation हम use करेंगे 10 divided by total sum of the size of the processes, so 127 plus 10, so it will be 137 into total number of frames, so 10 divided by 137 into 64, that means 5 frames will be allocated to process 1 and remaining 59 frames will be allocated for process 2। तो आप देख सकते हो भाई साइज प्रोसेस 1 का ओनली 10 KB है, तो उसे 10 ही फ्रेम्स चाहिए, तो डेफिनेटली हम उसे 32 फ्रेम देके क्या करेंगे जब उसे मैक्सिमम ही 10 की नीड है, सो 5 इज ओके। एंड हो सकता है कि उस 10 में से एक टाइम पर कितने एक्टिव होते हैं या एक टाइम पर कितने पेजेस मैक्सिमम हमारे होने चाहिए मेमोरी में, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बट यहाँ पर अगर हमारा एक प्रोसेस का साइज 10 KB था और उसे 10 फ्रेम्स मैक्सिमम चाहिए, तो हम उसे यहाँ पे 5 ही फ्रेम्स एलोकेट कर रहे हैं। सेकेंड प्रोसेस हमारा 127 KB साइज का है, तो हम उसे अप्रॉक्सीमेटली 60 फ्रेम्स एलोकेट कर रहे हैं। सो ये कंपैरेटिवली बेटर अप्रोच है एज कम्पेयर टू इक्वल एलोकेशन। So this is what this equal allocation and proportional allocation is all about. So I hope the concept is very much clear. And another category is priority allocation. तो यहाँ पर एक छोटा सा difference आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि rather than the size of the processes, just allocate the frames on the basis of their priority. So if there is any higher priority process, तो higher priority process को ज़्यादा number of frames allocate किए जाएं as compared to any lower priority process. So this is what priority allocation says. And one more small concept which is regarding the frame allocation is global versus local allocation. तो भाई दो तरह की replacement possible है, one is known as global replacement and second is known as local replacement. Global replacement क्या बोलता है कि जब भी हमें कोई पेज रिप्लेस करना है तो हम सेट ऑफ अवेलेबल फ्रेम में से करते हैं, लेकिन ग्लोबल के केस में एक पर्टिकुलर प्रोसेस किसी और प्रोसेस के फ्रेम को भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन लोकल के केस में हर प्रोसेस का अपना एक पेज होगा, तो जो भी पेज आएगा वो उसी प्रोसेस के किसी और पेज को रिप्लेस करे। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल रिप्लेसमेंट एंड लोकल रिप्लेसमेंट। सो ग्लोबल मीन्स एंटायर मेन मेमोरी में से कहीं भी वो जहाँ भी एलोकेट हो सकता है, किसी भी फ्रेम को उसे रिप्लेस करना पड़े तो इशू नहीं आना चाहिए। लोकल रिप्लेसमेंट सेज रिप्लेस ओनली दैट पर्टिकुलर पेज दैट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस ओनली। सो यहाँ पर गिवन भी है, सो प्रोसेस सेलेक्ट्स अ रिप्लेसमेंट फ्रेम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल द फ्रेम। सो वन प्रोसेस कैन टेक अ फ्रेम फ्रॉम अनदर। तो कोई एक प्रोसेस का अगर पेज आकर मेन मेमोरी में बैठेगा तो वो किसी और प्रोसेस के फ्रेम को भी रिप्लेस कर सकता है। दिस इज व्हाट ग्लोबल रिप्लेसमेंट इज। बट लोकल सेज अगर एक प्रोसेस के 4 पेजेस हैं और उसमें से 3 पेजेस ऑलरेडी रैम में है, तो वो उन्हीं किसी 3 पेजेस को ही रिप्लेस करेगा अगर 4th वाला पेज हमारा
रैम में आना चाहता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वर्सेस local allocation. Okay, so just let me move to the last topic for today. So thrashing is another interesting concept. तो भाई thrashing क्या कहता है कि if a process does not have enough frames, in that particular case the page fault rate is very high. तो भाई इसका क्या मतलब है, अगर सपोज मेरा एक प्रोसेस 10 अलग अलग पेजेस में डिवाइड है 0 to 9 एंड मेन मेमोरी में उसे सिर्फ 3 ही फ्रेम्स एलोकेटेड हैं कि एक टाइम पर इस प्रोसेस के 3 ही पेजेस रैम में आ सकते हैं, और सपोज उस प्रोसेस के एटलीस्ट 5 पेजेस एक टाइम पर रैम में होने चाहिए ताकि वो प्रोसेस एक्चुअली एग्जीक्यूट हो सके. सो भाई यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज एक प्रोसेस के 10 पेजेस, 10 में से 3 ही अलाउड हैं मेन मेमोरी में, लेकिन प्रोसेस क्या कहता है कि मुझे एटलीस्ट 5 पेजेस एक्टिव पेजेस चाहिए जो रैम में होने चाहिए, लेकिन 3 से ज़्यादा जा नहीं सकते. तो भाई उस केस में क्या होगा, इफ एनी प्रोसेस डज नॉट हैव एनफ नंबर ऑफ फ्रेम्स इट नीड्स टू सपोर्ट, सो उस केस में बार बार जल्दी जल्दी वो प्रोसेस अपने पेजेस को रिप्लेस करेगा, बिकॉज होने 5 चाहिए थे लेकिन अलाउड 3 ही हैं. सो इन दैट पर्टिकुलर केस the page replacement algorithm will quickly replace the pages for that particular process. बार बार पेज रिप्लेसमेंट होगी, बार बार पेज फॉल्ट होंगे. This particular situation is known as thrashing. So here you can see if a process does not have enough frames, in that particular case the page fault rate would be very high. तो हाई क्यों होगी, मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि एग्जाम्पल से एक प्रोसेस 10 पेजेस, उन 10 पेजेस में से एक टाइम पर 3 ही पेजेस हमारे रैम में जा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस को एटलीस्ट 5 पेजेस चाहिए रैम में एक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए. सो बार बार जल्दी जल्दी उन पेजेस को रिप्लेस करेगा वो प्रोसेस. सो जो सीपीयू का जो सारा काम है वो पेज रिप्लेसमेंट में ही, स्वैप इन और स्वैप आउट में ही लग जाएगा rather than executing the processes. So this particular situation is known as thrashing. So here you can see page fault to get the page बार बार होगा, replace the existing frame, and जैसे ही हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे फिर से हमें उस पेज की नीड होगी, तो ओवरऑल जो CPU यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगी. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सोचेगा कि हमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस रैम में लेके आने चाहिए, एंड इस चक्कर में जो हमारा सिस्टम है वो एक और प्रोसेस को रैम में ऐड कर देगा. तो भाई उससे क्या डिसएडवांटेज होगा, दैट आई एम डिस्कसिंग as the last topic for today. So basically thrashing is high paging activity. हम बार बार पेज रिप्लेस कर रहे हैं, पेज फॉल्ट हो रहा है उसकी वजह से पेज रिप्लेस कर रहे हैं. सो CPU इसी काम में लग गया, सिर्फ पेजेस को स्वैप एंड स्वैप आउट ही कर रहा है रादर देन एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस. ये काफ़ी ज़्यादा ओवरहेड हो जाएगा ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. ओके, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे. हियर यू कैन सी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हमें गिवन है. तो भाई यहाँ पर क्या होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइम टू टाइम हमारा CPU यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करता है. तो अगर हमारी CPU यूटिलाइजेशन कम है, दैट मीन्स अगर CPU आइडल है, उस केस में हम इन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज कर देते हैं. तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द रैम. सो हम रैम में नए प्रोसेसेस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और बेसिकली यहाँ पर हम ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं कि जो भी नया प्रोसेस है, न्यू प्रोसेस के जो पेजेस हैं वो किसी भी फ्रेम को रिप्लेस कर दें. तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जब भी कोई नया प्रोसेस आएगा वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेम्स को रिप्लेस करने लगेगा, और इस केस में हमारे पास पेज फॉल्ट फिर से बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे. एंड जैसे ही पेज फॉल्ट ज़्यादा होंगे तो हमारे पास स्वैप इन और स्वैप आउट ऑफ प्रोसेसेस क्या हो जाएगी, फिर से ज़्यादा हो जाएगी, थ्रेशिंग हो जाएगी, और थ्रेशिंग की वजह से हमारे पास CPU यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी. तो बेसिकली इस डायग्राम में हमें क्या गिवन है, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, देखो हम स्टार्टिंग में CPU यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाते रहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे रैम में, लेकिन एक ऐसा थ्रेशोल्ड आ जाएगा, एक ऐसी थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ थ्रेशिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ पेज इन पेज आउट, स्वैप इन स्वैप आउट, जस्ट बिकॉज ऑफ पेज सो मेनी पेज फॉल्ट्स, जो हमारी CPU यूटिलाइजेशन है वो एकदम से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, फॉल हो जाएगी,
and this particular threshold is basically the thrashing. So यहाँ पर हमें basically यही चीज सीखनी है. This entire phenomena is given in the this particular diagram. So as the degree of multi-programming increases initially, तो हमारी CPU utilization भी increase हो रही है starting में, although slowly क्या हो जाएगा, ये एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा. सो अगर उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा अगर हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करना चाहेंगे तो एकदम से हमारी जो CPU यूटिलाइजेशन है वो ड्रॉप हो जाएगी शार्पली. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, टू इंक्रीज द CPU यूटिलाइजेशन एंड स्टॉप थ्रैशिंग, हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोसेसेस को रैम से बाहर लेकर जाना पड़ेगा. सो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ thrashing, and it shows the relationship between CPU utilization and degree of multi-programming. तो starting में हम degree of multi-programming increase करेंगे CPU utilization increase करने के लिए, लेकिन एक ऐसा point आ जाएगा जहाँ पर page fault और pages का exchange इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एकदम से हमारी CPU utilization drop हो जाएगी. तो उस केस में हमें वापस CPU utilization increase करने के लिए degree of multi-programming को कम करना पड़ेगा. So this is the entire scenario for today's lecture, and I think one topic is left, working set model, that I will discuss either in the next lecture or I will let you know what exactly we have to cover in the next class. So I hope the concept which I have discussed today